Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawhar. So friends, I welcome you all for the SY Basic Chemistry paper 3 and now we are in semester 4 and we have started with the first unit of this semester, that is methods of separation. So far now we have discussed about the importance of separation in chemical analysis, and then we have also seen the various type of steps that you have to carry out for the separation of component in a given mixture. Then we have also discussed about the various types of separation based upon different properties of the substance. So very first property we have discussed is solubility, right? And based upon solubility there are three separation techniques. It is precipitation, filtration and crystallization. So we have also discussed about the details of these three methods and at what condition they are applied, that also we have discussed. Then the second type of separation method is based on the property of gravity. Okay, we all know that the gravitational force of earth is responsible for the mass of any object. So depending upon this property there is one separation technique known as centrifugation. So we have also taken detailed idea about the centrifugation, how the centrifugate machine works and how because of the gravity the component of two miscible or immiscible liquids or mixture of solid and liquid is separated using centrifugal force, that also we have seen. Now we are going towards the next property of substance, that is volatility, right? So depending upon the property volatility, the separation method is known as distillation. Okay, so distillation इसके बारे में भी हमने थोड़ा देखा था, that it is the process in which a liquid is converted into its vapor phase, right, at its boiling point and vapor is condensed back to the liquid on cooling is known as distillation. तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और उतनी ही यूज़फुल है. वी हैव ऑल्सो सीन द डायग्राम ऑफ दैट सपोज यू आर प्रोवाइडेड विद द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड. ऐसे दो लिक्विड्स है जो एक दूसरे के साथ मिसिबल हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं और उनको किसी भी मैनुअल टेक्निक से सेपरेट करना मुश्किल है. देन यू हैव टू यूज़ डिस्टिलेशन टेक्निक. So here you have to take a round bottom flask in which you have to take two immiscible or we can say miscible liquids जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज़ दैट देयर बॉइलिंग पॉइंट शुड हैव डिफरेंस. तो जैसे जैसे आप उसको हीट करते हो व्हाट विल हैपन, द लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो इट विल अचीव फास्ट, वो पहले आ जाएगा एंड एट दैट टेम्परेचर द लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग, राइट. तो ये जो टेम्परेचर है ये आपको मेंटेन करना है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है. सो फॉर दैट यू आर यूजिंग थर्मामीटर. तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जो आपका लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ रहा है वो बॉयल हो जाएगा. देन इट विल इवापोरेट एंड these vapors are collected in a adapter. okay, then they are passed through condenser. कंडेंसर का रोल हम सबको पता है. कंडेंसर ऐसी ट्यूब होती है जिसके बाहर के साइड से देयर इज़ कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड अराउंड द डिस्टिलेट. तो जैसे जैसे कूलिंग वाटर उसके अराउंड सर्कुलेट होता है वो जो वेपर है इट गेट कंडेंस, है ना, जैसे बारिश होता है. तो इन द राइट साइड ऑफ द सिस्टम यू गेट योर डिस्टिलेट. वो जो अपना इवापोरेट हुआ था वेपर था वो स्लोली अगेन इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म और आपको सारा डिस्टिलेट दूसरे साइड में राइट हैंड साइड के बीकर में या फिर कोनिकल फ्लास्क में मिल जाएगा. सो दिस वे द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज कैरिड आउट. ओके, पर यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या होती है कि इफ़ द टू लिक्विड्स हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट या फिर उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अगर पास पास है तो बहुत मुश्किल है दोनों को अलग अलग सेपरेट करना, है ना. सो फॉर दिस व्हाट दे डू, दे यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन मेथड्स. ये जो डिस्टिलेशन मेथड है उसके भी अलग अलग टाइप है. तो उसकी सबसे पहली टाइप है दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, सो द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
is the one where the two or more liquids which are having less difference in their boiling point are taken. Okay, तो ऐसे जो लिक्विड है जिनका मिक्सचर है और उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, they are near to each other. So in that case you have to apply fractional distillation. Okay, so the liquids which have lower boiling point, or we can say which is more volatile, it will distill out first. बराबर, जिसका boiling point कम है या जो ज़्यादा volatile है वो पहले निकल आएगा, leaving behind the less volatile, मतलब जिसका boiling point ज़्यादा है वो पीछे रह जाएगा round bottom flask में. Thus on repeating the procedure various fractions are obtained which bring about the separation of component. तो अगर आपके मिक्सचर में दो से ज़्यादा लिक्विड है तो भी हम लोग ये टेक्निक यूज़ करके सारे लिक्विड्स या सारे सॉल्वेंट्स वी कैन से सेपरेट कर सकते हैं, है ना. सो अगर आप जो लिक्विड यूज़ कर रहे हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट 30 केल्विन या 30 केल्विन के आसपास डिफरेंस है, देन डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है पहले आप उसको देख लो कैसे होते. सो दिस टाइप ऑफ कॉलम्स आर यूज्ड, दिस टाइप ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ओके, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ क्या है. दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स आर मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब्स, है ना, एंड दे आर फिल्ड विथ ग्लास बीड्स और छोटे छोटे ग्लास पार्टिकल. तो देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक ट्यूबुलर साइज़ की चीज़ है, ट्यूब है, और उसके अंदर ग्लास बीड्स, छोटे छोटे ग्लास पार्टिकल या ग्लास बॉल भरे हुए हैं, है ना. सो इनका रोल क्या है, दे विल इंक्रीज द कूलिंग सरफेस एरिया, है ना. यहाँ पे देखो वेपर अगर इस ऐसे टाइप के कॉलम में जाके अटकती है तो उसको कूल होने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, and it will provide more obstruction to the passage of the liquid and it will stop the other liquid to come out fast. ऐसी चीज़ की ज़रूरत क्या है कि अगर आप दो लिक्विड एक साथ बॉईल कर रहे हो और जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी पास पास है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ दिस कॉलम और द बीड्स इनसाइड दिस कॉलम, वो क्या करेंगे, दूसरा जो लिक्विड है जो भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है उसको वो रोकेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो उबल रहा है, बॉईल हो रहा है, तो उसको वो अपने जगह पे आने के लिए मजबूर करेगा. सो दिस वे दिस इज़ द बेटर यूज़ ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. तो अभी हम लोग ये डायग्राम फिर से देखेंगे. इसमें ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर हम लोगों ने लगाया है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ओके, so this type of fractionating column will allow the liquid which is having low boiling point, it will come fast outside. okay, क्योंकि उसका boiling point तो आ चुका है, लेकिन जो दूसरा लिक्विड है जिसका boiling point अभी आया नहीं है, but it also want to go out, it also want to get evaporated, लेकिन वो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अटक जाएगा और फिर से वही राउंड बॉटम फ्लास्क में गिरेगा. So this way the fractionating column or fractional distillation is useful to separate the liquids which have similar boiling points. उनके boiling points अगर पास पास है, करीब है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ कर सकते हैं. सो हम लोगों ने ये वेरियस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स देखे. ऐसे बहुत सारे टाइप के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड द रिमेनिंग मेथड इज़ सिमिलर. आप लोगों को उसी तरह फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर अडाप्टर लगाना है. इस अडाप्टर के ऊपर वी विल पुट थर्मामीटर एंड टू द अडाप्टर वी विल अटैच द कंडेंसर. देन कंडेंसर के बाहर में हम लोग कोल्ड वाटर का सप्लाई देंगे ताकि उसके अंदर जो वेपर आ रहे हैं वो कंडेंस हो जाए, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू द ड्रॉपलेट्स एंड दैट ड्रॉपलेट्स विल बी रिसीव्ड टू द अनदर बीकर और यू कैन से कोनिकल फ्लास्क. तो इस तरीके से यूजिंग द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐसे दो या तीन लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट पास पास है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वी कैन सेपरेट दिस टाइप ऑफ लिक्विड्स. ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. देन वी विल सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ डिस्टिलेशन दैट इज कॉल्ड एज अजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन.
क्या नाम है, अजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन. सो इन दिस मेथड अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड एज एंट्रेनर इज एडेड टू द बाइनरी मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड. सारी प्रोसीजर सेम है, आप हमेशा यही डायग्राम देखना है ना. तो इसके अंदर ये जो बॉइलिंग राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसके अंदर आप दो लिक्विड ले रहे हो, ओके, मिसिबल लिक्विड्स, उसके अंदर हम एक थर्ड कंपोनेंट ऐड कर देते हैं. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है, उसी तरह से इसके अंदर हम लोग एक थर्ड कंपोनेंट डाल देंगे, उसको कहते हैं एंट्रेनर. ओके, तो ये एंट्रेनर क्या करेगा, दिस एंट्रेनर विल कॉज अ डिफरेंस इन द volatilities of the components by changing the partial pressure of one of the component. तो मान लो कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करके भी हम लोग दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो इन दैट केस यू हैव टू ऐड थर्ड कंपोनेंट, उसके अंदर डाल देना है, जिसको हम एंट्रेनर कहते हैं. इस एंट्रेनर के वजह से देयर इज पार्शियल डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर क्रिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट it also further causes a considerable difference in the boiling point of two liquids which bring about effective separation. तो उस एंट्रेनर के वजह से दोनों की जो वोलेटिलिटीज़ है उसमें डिफरेंस आ जाता है, और एक बार अगर वोलेटिलिटीज़ में डिफरेंस आ गया तो ऑब्वियसली टू लिक्विड विल बॉयल एट टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, एंड देयरफॉर देयर विल बी effective separation during distillation. So the entrainers are generally dehydrating agents such as benzene, carbon tetrachloride, diethyl ether और glycerol. तो इस तरीके से अलग अलग लिक्विड्स या फिर कंपोनेंट्स हम लोग ऐड करेंगे while distillation. They form a constant boiling mixture called as azeotrope. ओके, तो ये एंट्रेनर ऐड करने के बाद जो मिक्सचर बॉईल होने लगता है हमारा, उसे हम लोग कहते हैं अजियोट्रोप with one or both the component of the mixture. So this azeotropic distillation, the two components behave as a single component and distill over together at a constant temperature. तो सेपरेशन ज़्यादा इफेक्टिव होने के लिए हम लोग एक थर्ड कंपोनेंट ऐड कर देते, उसे हम कहते हैं एंट्रेनर, एंड द टोटल मिक्सचर इज कॉल्ड एज अजियोट्रोपिक मिक्सचर. उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ डिस्टिलेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन. पहला हो गया फ्रैक्शनल, दूसरा हो गया अजियोट्रोपिक. अभी थर्ड टाइप का जो सेपरेशन है डिस्टिलेशन, उसे हम कहेंगे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन. सो इन दिस एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ मिसिबल हाई बॉइलिंग and relatively non-volatile component which does not form any azeotrope with the other component of the mixture. तो अगर अजियोट्रोपिक के टाइम पे जो हम एंट्रेनर ऐड करते हैं वो भी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर देना है जो नॉन वोलाटाइल है ना. आपके दोनों जो मिक्सचर है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है, दे आर हैविंग नियर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर ऑल्सो वोलाटाइल. ऑब्वियसली वो बाहर आने वाले हैं ना, तो दे आर वोलाटाइल, लेकिन उनके साथ हम लोगों को एक थर्ड कंपोनेंट ऐड कर देना है, ओके, एंड दैट थर्ड कंपोनेंट शुड बी नॉन वोलाटाइल. तो बिकॉज ऑफ विच अगेन वी गेट इफेक्टिव सेपरेशन, एंड दिस एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन इज ऑल्सो बेटर एंड ईजी टू कैरी आउट दैन योर अजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन. तो ये भी जो मेथड है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है. देन देयर इज फोर्थ मेथड विच इज कॉल्ड एज वैक्यूम डिस्टिलेशन. So in case of vacuum distillation, what you have to do? Obviously नाम है तो हम लोगों को क्या क्रिएट करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है ना. So in case of vacuum distillation, some liquids decompose at or very below their boiling point. Such liquid can be purified by the method of vacuum distillation. Okay, so in this case what you have to do, the liquid is made to boil at a temperature lower than the normal boiling point by reducing the surface pressure. तो हम लोगों को वैक्यूम क्रिएट करना है, और वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, जो लिक्विड है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट बॉइल होने लगेगा बिकॉज ऑफ reducing in surface pressure. If the external pressure is reduced, the boiling point of the liquid also lowered.
मतलब वैक्यूम क्रिएट करने के वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल जो प्रेशर है सिस्टम के ऊपर वो कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड ऑल्सो डिक्रीजेस. सो दिस एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी रिड्यूस बाय मीन्स ऑफ वैक्यूम पंप. मतलब जैसे जैसे डिस्टिलेशन स्टार्ट होता है, बॉइलिंग स्टार्ट होता है, यू हैव टू कनेक्ट दिस सिस्टम टू द वैक्यूम पंप, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द सिस्टम. फिर वो वैक्यूम की वजह से क्या होगा, सरफेस प्रेशर भी कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल also get lowered. Because of that you get effective separation. Okay, then the last one, that is fifth method, is called as steam distillation. Okay, so what happens in steam distillation, आप उसका डायग्राम देखो. इन केस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन यू कैन सी दैट सेंट्रली देखो देयर इज अवर राउंड बॉटम फ्लास्क, और उसके राइट साइड में हम लोगों ने अडॉप्टर अटैच किया है, और उसके बाद हम लोगों ने कंडेंसर भी लगाया है. सो द राइट हैंड साइड सिस्टम इज सेम, बट टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टम यू कैन से देयर इज बॉइलिंग वाटर. तो ये बॉइलिंग वाटर क्या करेगा, स्टीम जनरेट करेगा. तो क्या यूज़ होता है इसका. सो इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन where we use completely immiscible liquids, the mixture always boil at very low temperature than at which a pure constituent of the mixture boils. मतलब जब आप दो इमिसिबल लिक्विड एक साथ रखते हो तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाता है. नॉर्मल अगर सिंगल लिक्विड हम लोग बॉईल कर रहे हैं तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, और अगर उसका मिक्सचर कर देंगे तो वो जब बॉईल होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मल है उससे भी बहुत कम होता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज ऑलवेज हायर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट. सो स्टीम डिस्टिलेशन इज डन वेयर it is useful for the liquids which are immiscible in water like aniline. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे दिखाया है कि एक बॉटल लेंगे जिसके अंदर वाटर है, उसको हम लोग बॉईल करेंगे, एंड दिस स्टीम इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनसाइड आवर राउंड बॉटम फ्लास्क वेयर आवर लिक्विड्स आर केप्ट फॉर द डिस्टिलेशन. तो आप लोगों को देखना है कि देखो जहाँ पे वाटर बॉईल हो रहा है उसके ऊपर ट्यूब है ना, नहीं तो वो वाटर भी उस तरफ जाएगा. सो यू हैव टू कलेक्ट ओनली द स्टीम, एंड दैट स्टीम इज डायरेक्टली पास टू द राउंड बॉटम फ्लास्क ऑफ आवर डिस्टिलेशन फ्लास्क. तो वहाँ पे ये स्टीम जनरेट होगी, स्टीम पहुँचेगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टीम द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द स्टीम इंक्रीजेस. ओके, तो जैसे अगर हम लोग वाटर और एनिलीन कंसिडर करते हैं, then the normal boiling point is more than 180 degrees Celsius, but it can be made to boil and distill over a temperature below 100 degrees Celsius by passing the steam. Okay, so this way because of the steam we can do the easy separation and we have effective separation. So this way, this is the complete information about the distillation technique. So this distillation technique is based upon volatility. Okay, तो अब तक हम लोगों ने तीन टाइप के प्रॉपर्टीज देखे, सॉल्युबिलिटी, ग्रेविटी एंड वोलेटिलिटी. ओके, इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे द फोर्थ टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट. अभी जो लास्ट टेक्निक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट यू हैव टू डू, you have to carry out the method which based on electrical effect or electrical charge. So this technique is called as electrophoresis. Okay, so what is this electrophoresis? It is the separation method based on the differential rate of migration of charge species when direct current or electrical field is applied. तो ये इलेक्ट्रिकल फोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम कैरी आउट करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू माइग्रेट द चार्ज स्पीशीज़. चार्ज स्पीशीज़ मतलब वो आइदर पॉजिटिवली चार्ज होंगे या निगेटिवली चार्ज होंगे. ऐसे स्पीशीज़ को आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रन करना है. ओके, देन देयर विल बी इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ दिस चार्ज स्पीशीज़. ओके, सो ये कैसे करते हैं दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. और
किसने ये मेथड फाइंड आउट की थी एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट lecture. Okay, till that you take care and stay safe. Thank you.